Good morning, students. Now, in the last video, I have told you what is the meaning of the refraction, right? Now, today I will tell you the laws of refraction. Now, what are laws of refraction? The first law is the incident ray, refracted ray, and normal. Clear? I have already explained you. You can see in this diagram one incident ray, the light ray which is coming towards the slab, clear, and then passing in the slab, that is a refracted ray, and a normal which we have drawn it. All these three lines you can see meet at one point and lie in the same plane, clear. Then second law is the ratio of sine of angle of incidence, clear. आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. तो साइन ऑफ एंगल ऑफ आई ओवर साइन ऑफ एंगल आर, दोनों की अगर हम साइन में वैल्यूज ले लें बेटा, दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, क्लियर. नाउ बट इट इज कांस्टेंट फॉर द गिवन कलर ऑफ लाइट. एक ही लाइट के लिए ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी बेटा. इफ द कलर ऑफ लाइट चेंजेस देन इट इज नॉट कांस्टेंट, देन इट हैज डिफरेंट वैल्यू, क्लियर. तो फॉर द सेम कलर and one more condition, the pair we are taking, like in this case we have taken the air and glass, हवा से लाइट आ रही है बेटा ग्लास में, तो दिस पेयर मीन्स एयर एंड ग्लास का ये पेयर बन गया. तो सेम वे इफ द कलर ऑफ लाइट इज सेम एंड द पेयर ऑफ मीडियम इज सेम, देन दिस वैल्यू साइन आई ओवर साइन आर इज कॉन्स्टेंट बेटा, क्लियर. एंड दिस लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ. इसी लॉ को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, अंडरस्टैंड. द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ. Now, why it is called Snell's law, it is not given in your book, because this sin I, ये जो sign लगा है बेटा आगे, it is given by the or put by the Snell's. अब क्यों लगाया, that I will explain you in the Zoom class. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ेगी, okay? What's the need of it? Now, this ratio is constant, and this constant is called refractive index. Clear? Now, what it tell us? Basically tell us the amount of bending of light given in the pair of medium, कि light कितना bend करेगी, clear. ये आपको ये constant बताएगा. Like in this case you can see when light enters from air to glass slab it bend, तो कितना bend करेगी, what is the angle at which it bends, how we can know, that is known by the ratio of sine I over sine r, right. And this constant is called refractive index, clear. Now, our next topic is refractive index. Now, there are so many definitions बेटा, ठीक है, इसकी 3-4 definitions है. Now, what is refractive index basically? तो before starting that, I will just tell you one thing. Now, देखिए बेटा, light travels with different speed in different medium. ये तो आप समझ लीजिए कि when medium is changed, the speed of light is changed. तो I compare this medium with the roads, ठीक है, highway road, simple road, busy roads. तो वो roads क्या हैं, वो medium है हमारे. तो naturally it should be there. तो when medium change होगा तो naturally the speed of light also changes. तो in different medium light travels with a different speed. Clear बेटा. Now maximum speed of light, सबसे तेज लाइट कहाँ भागती है, its speed is in vacuum. Clear. सबसे तेज लाइट भागती है वैक्यूम में. Now might be some are not knowing what is vacuum. अब कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा हो कि वैक्यूम क्या होता है बेटे. वैक्यूम इज नथिंग, इफ़ यू रिमूव एयर फ्रॉम समथिंग, कहीं से पूरी हवा निकाल दो बेटा, तो वो क्या बन जाता है, दैट इज वैक्यूम, क्लियर. विद द वैक्यूम पम्प व्हेन वी रिमूव एयर फ्रॉम सम एरिया, तो वी कॉल दैट वैक्यूम. तो लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, क्लियर. हमने वहाँ से सारी डिस्टर्बेंसेस निकाल दी, तो नाउ लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन वैक्यूम. नाउ एयर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ वैक्यूम यू कैन से, ठीक है. हवा में भी इसकी स्पीड ऑफ लाइट और वैक्यूम में देयर इज नो मच डिफरेंस. तो एयर को भी हम वैक्यूम की जगह उसकी वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं, राइट. तो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपको किसी मीडियम्स का पेयर का कंपेयर करना है, तो व्हाट वी विल डू, तो यू विल टेक द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, जैसे लाइक इन दिस मीडियम 1 इज एयर, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बेटा, क्लियर, यानी कि ग्लास. तो व्हाट इज दिस रेशियो, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. Means by just finding or dividing the speeds of light into different medium, you can get the refractive index, clear. Now, refractive index of medium 1 with respect to 2, how you will read it, refractive index of medium 1 with respect to 2. इसको लिखा ऑपोजिट जाता है बेटे, जो नीचे वाला होता है वो पहले लिखा जाता है. यू कैन सी इन दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 1 आई हैव रिटन. नाउ व्हाई इट इज रिटन, और इसको पढ़ना कैसे है,
refractive index of medium 1 with respect to 2. With respect to, बेटे you just learn like this. With respect means divide. इसको divide के साइन से लिख लीजिए, because there is a confusion. Clear? If I will say, अब इसको मैं थोड़ा उल्टा पढ़ती हूँ. अगर आपको ऐसे लिखना हो, refractive index of medium 2 with respect to 1, then what you will do? तो फिर with respect to 1 हो गया, तो you will divide by 1. तो फिर speed of light in medium 2 ऊपर आ जाएगा बेटे, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 नीचे आ जाएगा. और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर हम 1 2 लिखेंगे, 2 1 नहीं लिखेंगे. क्लियर? नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा? एब्सोल्यूट का मतलब होता है यू कंपेयर द वैल्यू विद द हाईएस्ट वैल्यू. तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है बेटा लाइट की स्पीड की? एयर में, वैक्यूम में. तो यू विल जस्ट कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम एंड एयर. तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दैट इज सी. वैक्यूम में हो गई बेटा 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. देन डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. किसी भी मीडियम से आप कंपेयर कर लीजिए, वाटर, ग्लास, तो दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और इसको हम सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह देते हैं बेटा, राइट? एंड इफ यू विल कंपेयर द वैल्यू ऑफ 2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, then we call it relative refractive index. So this is all about the laws of refraction and the refractive indexes. I think it is clear. If any doubt is there, we will discuss in the Zoom class beta. Thanks and have a nice day.